हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव गोविंद, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 4 और 5 से पाठ करेंगे। प्रभु जी ने हमको आदेश दिया था चौथे श्लोक का पाठ करने के लिए, लेकिन चौथा और पांचवा श्लोक जो है एक साथ है, तो दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग। तत्रोपनीत बलयो रवेरदीपम् इवादृतः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रति उत्फुल्लमुखात् प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा पीतरं सर्वसुहृदम् अविताराम इवार्भकः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. The citizens arrived before the Lord with their respective presentations, offering them to the fully satisfied and self-sufficient one, who by his own potency incessantly supplies others. These presentations were like the offering of a lamp to a sun, yet the citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as wards welcome their guardian and father. Purport: Supreme Personality Godhead Lord Sri Krishna is described herein as Atmaram. He is self sufficient and there is no need for him to seek happiness from anything beyond himself. He is self sufficient because his very transcendental existence is total bliss. He is externally existent, he is all cognizant and all blissful. Therefore, any presentation, however valuable it may be, is not needed by him. But still, because he is well wisher for one and all, he accepts from everyone everything that is offered to him in pure devotional service. It is not that he is in want of such things, because the things are themselves generated from his energy. The comparison is made herein that makes offering to the Lord is sometimes like offering a lamp in the worship of the sun god. Anything fiery and illuminating is but an emanation of the inner energy of the sun. And yet, to worship the sun god, it is necessary to offer him a lamp. In the worship of the sun, there is some sort of demand made by the worshipper. But in the case of devotional service to the Lord, there is no question or demand from either side. It is all a sign of pure love and affection between the Lord and the devotee. The Lord is the supreme Father of living beings, and therefore those who are conscious of this vital relation with God can make filiable demand from the Father, and the Father is pleased to supply the demand of such
obedient sons without bargaining. Thus, Lord is just like the desired tree, and from him everyone can have everything by the causeless mercy of the Lord. As the Supreme Father, Lord, however, does not supply to a pure devotee who is considered to be a barrier to the discharge of devotional service. Those who are engaged in devotional service of the Lord can rise in the position of unalloyed devotional service by his transcendental Recording in progress. devotional service. Those who are engaged in the devotional service, the Lord can rise to the position of unalloyed devotional service by his transcendental attraction. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस अध्याय में भगवान जो है द्वारिका जी में इंटर कर रहे हैं, और भगवान जब इंटर करते हैं तो उनका कैसे भव्य स्वागत होता है वो हम देखते हैं। एक छोटा व्यक्ति भी है जो उनको प्रेजेंट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। हाँ, रानियां जो हैं वो फूलों का हार लेके खड़ी है, उनके पुत्र जो है उनका वेट कर रहे हैं। बड़े लोग जो हैं इस आशा में है कि भगवान कब आएंगे, उनको मैं देख पाऊंगा, कब हमारे पैर छुएंगे, कब मैं उनको गले से लगाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे भक्तों और भगवान के बीच में कैसे आदान प्रदान होता है उसके बारे में बताया गया है, और तरह तरह के गिफ्ट दे रहे हैं। आप देखेंगे भगवान को जो है कहीं ना कहीं गिफ्ट मिलते रहता है। उनको जब छोटे थे भगवान तो कोई उनके लिए जो है बांसुरी ला करके दे रहा है, कोई उनके लिए कपड़ा ला करके दे रहा है, कोई उनके लिए जो है पाँव में जो है पायल है वो ला करके दे रहा है। हाँ, उसी तरह से जब आप देखेंगे वामन देव जब धाम पे अवतार लिया तो वामन देव को देने के लिए जो है पृथ्वी देवी जो है मृग चर्म लेकर के आई। हाँ, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, वो गायत्री मंत्र दिया। हाँ, उसी तरीके से वरुण देव ने उनको कमंडल दिया। हाँ, फिर उनको कुंडल दान दिया गया पार्वती माता के द्वारा, और इसी तरीके से अनेकों गिफ्ट उनको मिले। हाँ, तो भगवान को जो है लोग जब भी आते हैं तो भगवान को सब लोग जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, गिफ्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको अर्पण करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान की भी एक क्वालिटी दी गई है। भगवान क्या है? भगवान जो है आत्मा राम है। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्गंथा विक्रमे कर तुम अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हाँ, जो भगवान तो आत्मा राम है ही, साथ ही साथ उनके भक्त भी आत्मा राम है। हाँ, लोग सोचते हैं कई बार आप डोनेशन मांगने जाएंगे या डोनेशंस के लिए बात करेंगे तो लोग सोचेंगे अरे यार ये भक्त लोग हमेशा मांगते रहते हैं, पैसा इनके पास नहीं रहता क्या? भगवान के भक्त हैं, इनके पास तो होना चाहिए। हाँ, कई बार लोग जो है गुस्सा भी करते हैं, कई बार लोग घर से भगा देते हैं, कई बार लोग जो है कुछ बातें भी सुनाते हैं, 2 बार 4 बार सुनाते हैं। कई बार लोग डोनेशन बुला के नाम पे बुला करके अपमान करते फिर भेज देते बिना पैसा दिए हुए, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जब 2012 में रथ यात्रा के टाइम पे मैं फंड कलेक्शन करने जाता था इस्कॉन कोलकाता की तरफ से, तो मैं और एक हमारे साथ प्रभु प्रभु जी थे, राधा वल्लभ प्रभु। तो एक व्यक्ति वो किसी दूसरे मत का अनुयायी था, और जब हम लोग गए तो उन्होंने आधे घंटे बात किया कि क्यों मैं भगवान को पैसा नहीं दूंगा, और ये पैसा जो है मैं गरीब बच्चों को दूंगा, मैं बूढ़ों को दूंगा, सहाय को दूंगा, खाना खिलाऊंगा, फलाना ढिमकाना जो मैंने सो करूंगा, लेकिन भगवान को नहीं दूंगा। ये प्रैक्टिकल मेरे सामने ही घटना हुई थी। आधे घंटे उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया बुला करके। वो पहले ही फोन पे ही मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन हम क्यों भगवान को देना चाहिए, क्यों? और बाकी लोग जो हैं क्या उनसे संबंध है भगवान का या आपके लक्ष्मी का? क्योंकि भगवान जो है वास्तविक रूप से लक्ष्मी का अधिकारी है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों लाख लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा करते रहती हैं। और वास्तविकता ये कि जब भगवान आत्मा राम है, भगवान को हम देते हैं तो हम स्वयं भी आप्त काम हो जाते हैं। हमको फिर कोई काम वासना हमारे मन में नहीं रहती, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती भगवान को देने के बाद। ये वास्तविकता है। आप देखेंगे कि एक तरह से यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग चीजें
देने वाले कई हमारे मन में कभी डाउट आ जाता है, कह रहे 1,000 रुपये क्यों दे, चलो 500 दे देते हैं, या जो है थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं भगवान को, इतना ज्यादा क्यों दे। कई लोग सोचते हैं कि हम इतना ज्यादा टाइम क्यों दे भगवान के लिए। तो ये सारी चीजें भी हम लोग सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए समय खर्चा करता है, भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने में समय व्यतीत करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करने में समय व्यतीत करता है, अ, और इसी तरीके से भगवान के पवित्र नाम के जाप में अपना समय व्यतीत करता है, वास्तविकता में वही समय का यूटिलाइजेशन है, परफेक्ट यूटिलाइजेशन है। वो वास्तविकता में वही जो है अपने लक्ष्मी का यूटिलाइजेशन है, जो भगवान की सेवा में लगाया गया हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे जब व्यक्ति दे रहे हैं, यहाँ पे भगवान के जो भक्त हैं, जो सिटीजन्स हैं, हाँ, जो द्वारिका वासी हैं, वो जब आते हैं भगवान, तो ये क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भगवान तो जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो ऐसे हैं कि वो सबको देते हैं, पूर्ण काम है। हाँ, और नित्यदा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, नित्यदा। नित्यदा मतलब हर किसी को हर कुछ हर समय सप्लाई करने वाले जो हैं उनको नित्यदा कहा गया, देने वाले। जैसे गोपियां बताती हैं कि भगवान जो है, भगवान के भक्त जो है भूरिदा है, भूरिदा जना, ऐसे लोग जो भगवान की कथा को जो है चारों तरफ प्रचार करते हैं, बांटते हैं, वो सबसे ज्यादा दयावान है। हाँ, उसी तरह से भगवान भी जो है देते हैं, हर चीज देते हैं, हर व्यक्ति को देते हैं। हाँ, और इस संसार को भी उन्होंने परफेक्ट बनाया है कि व्यक्ति को जो इच्छा है वो मिल जाए। इसलिए बोलते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। यह सृष्टि भगवान ने रची है, हाँ, वो एकदम परफेक्ट है। बनाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। ये भजन गाते हैं भक्त लोग। तो वास्तविकता में भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो चला भी रहे हैं, और जिसका जो खाता है वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है, उससे ज्यादा खा नहीं सकता वो। ये वास्तविकता है। एक कथा आती है वृंदावन में कि भगवान छोटे से बालक थे, और एक फल वाली आई वृंदावन में घूमते हुए, और बेच रही है फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। और भगवान ने सुना, तो छोटे से बालक हैं, साल भर 2 साल के, वो दौड़े दौड़े भागे भागे आए, देखे कौन है, कौन है, कौन बुला रहा है, कौन है फल वाली। तो फल वाली को देखा तो बोला, ए फल वाली इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब फल वाली ने उनको देखा तो मोहित हो गई एकदम से देख करके। भगवान की जो काली काली आंखें थी, उनमें काजल लगे हुए थे, और होंठ जो है उनके एकदम लाल, और आंखें मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी, और कपोल गाल जो है उनके मोटे मोटे से एकदम गोल मटोल। और भगवान के जो गले में जो था त्रिवली थी, गले में शंख, उनका गला जो था शंख के समान था। छाती, छोटे में भी छाती उनकी चौड़ी हुआ करती थी, और छोटे से हाथ थे उनके, और उनको हाथों को फैलाते हुए आ रहे हैं भगवान, और उनको बोलते हैं कि मुझको फल चाहिए। तो फल वाली बोलती है कि आपको फल कैसे दूं, मैं तो फल किसी चीज के बदले देती हूँ, आप मुझको अनाज दीजिए, मैं आपको फल दूंगी। तो बोले ठीक है, मैं आपको जो है अनाज दूंगा। तो भगवान जो है अंदर चले गए, और बहुत बड़े से भंडार में उन्होंने अनाज को जो है अपने छोटे छोटे से हाथों में, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे पाँव, छोटो से मेरो नंद दुलाल, छोटे छोटे पाँव, और हाथों से लेकर के भगवान जा रहे हैं और देने के लिए। और उसमें भी जो है आधी अंजलि जो थी उनकी, आधी अंजलि वो साइड से जो है वो अनाज गिर रहा है, और भगवान इतने सुंदर हैं, ला करके दे रहे हैं, और दौड़ के आ रहे हैं। उनके शरीर से जो है उनके दिव्य जो है सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो लीला में एकदम समा जाते हैं। जैसे एक परफेक्ट एक्टर लीला करता है या एक्टिंग करता है, तो उसको रोने में और हंसने में भेद नहीं कर पाते हैं कि वो ओरिजिनली हंस रहा है या ओरिजिनली रो रहा है, क्या कर रहा है वाकई में। इसी तरह से भगवान जब दिव्य लीलाएं करते हैं,
तो ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे भगवान राम सीता माता के वियोग में रोने लगे तो माँ सती को संदेह हो गया कि भगवान वास्तविकता में ये यही भगवान है कि नहीं। तो भगवान की दिव्य लीला ऐसी होती है। तो जब वो जा रहे थे देने के लिए, तो अंजलि कहती कि जब तक पहुंचे तो कुछ दाने बचे थे हाथ में, लेकिन उनके रूप पे जो है, हाँ, वो गोपी जो है उनका मन जो है रीझ गया, जो फल बेचने आई थी, जो फल वाली। भक्त लोग गाना गाते हैं, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान का सूरत जिसने एक बार देख लिया जो है ना, उसका दिल दीवाना होगा ही। ये वास्तविकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये चीजें वो कैसे हो सकती हैं, कोई भगवान के प्रति इतना आकर्षित कैसे हो सकता है। वो इसलिए आकर्षित हो सकता है क्योंकि उसने भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में सुना हुआ है, दिव्य उनको देखा हुआ, और जो भगवान के प्रति थोड़ा सा भी जिनको प्रेम है, वो एक बार सुन लेता है, तो उनको उनमें मन में जो है भगवान की छवि जो है बस जाती है उनके मन में। और फूल वाली फल वाली ने जब देखा कि भगवान इतना मेहनत करके लाए हैं, उनके यहाँ पे जो अलके हैं, अलके से पसीना हो रहा है, उनके चेहरे पे हल्के हल्के बूंद आ गए, बहुत मेहनत किया है भगवान ने, छोटा सा अंजलि में लाने के लिए बहुत मेहनत दौड़ दौड़ के किया। तो वो जो है बहुत ही प्रभावित हो जाती हैं और भगवान को बोलते हैं, ठीक है दे दीजिए आप मुझको ये। तो थोड़ा सा हाथ में लेके वो अन्न रख लेती हैं, और भगवान के छोटे से हाथ में जो है सेब, केला, संतरा, नाशपाती सब जो है भर देती है, और भगवान जो है बेचारे छोटे से हैं, उठा नहीं पाते हैं, फिर भी पूरा भर करके हाथ में लेकर के वो जो है मुस्कुराते हुए जो है अंदर चले जाते हैं। और इधर फल वाली जो है वो सोचती है कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, अनाज ना मिला हो, कितना भी हम लोगों ने किया हो और अनाज हमको ना मिला हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कितना फल दे दिया हो, लेकिन मोहन को मैंने देख लिया, कृष्ण को मैंने देख लिया, ये मेरी जीवन की उपलब्धता है। और जब वो घर जाती हैं, घर जाकर के जब देखती हैं, तो पूरी उनकी जो टोकरी है वो हीरे जवाहरातों से, सोने से भरी हुई रहती है। तो आप सोचिए, चार पांच फल जो है 100-200 रुपए का आ जाएगा, और उसके बदले आपको कोई करोड़ों की संपत्ति दे दे, क्योंकि भगवान के घर में एक एक हीरा जो है करोड़ों का है, और कई हीरा उन्होंने दे दिया। तो आप सोचिए, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जो है भगवान को दे दिया, और उससे ज्यादा जो है भगवान ने अपने दर्शन दे दिए। भगवान जो है ब्रह्मा का राज्य दे देते हैं, इंद्र बनाते हैं, ये दे देते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने दर्शन बहुत ही कठिनता से देते हैं। तो भगवान को अगर हम थोड़ा सा देते हैं, चार पांच फल ऑफर कर देते हैं, तो भगवान जो है अपने आप को दे देते हैं, और सारी भौतिक इच्छाएं, आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं, हर इच्छाएं आपकी पूरी कर देते हैं भगवान। इतने अद्भुत हैं, और इतने अद्भुत हैं भगवान की लीलाएं। तो इस तरीके से जो है हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन भगवान को क्या इसकी जरूरत है? बताते हैं यहाँ पे शास्त्रों में कि भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, और एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का, कि भगवान जो सूर्य हैं, भगवान जो हैं सारे, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवान जो है सूर्य हैं, और हम लोग कुछ ऑफर कर रहे हैं तो उनको घी का दिया दिखा रहे हैं या नॉर्मल दिया दिखा रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पे सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, और हम उनको छोटी सी चीज जो है वो दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। और सारे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, सबका स्रोत सूर्य है। आप हाइडल एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, कोल एनर्जी हो, जितने भी प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर हो, जो भी है सब सूर्य की ऊर्जा से चल रहे हैं। हाइडल पावर, जब भगवान सूर्य जब तपाते हैं अ, समुद्र को, आपने अल नीनो और जो है एल नीनो सुना होगा। अल नीनो कंडीशन वो होता है जिसमें टेम्परेचर जो है लगातार 6 महीने तक एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा रहता है। नॉर्मल हर साल के जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से 6 महीने अगर वो ज्यादा तपे, तो उसको अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। और उसके चलते, ज्यादा तपने के चलते गर्मी बढ़ती है, और उसके तपने के चलते जो है जब सूखते हैं, पानी जब आता है बाहर में, तो वृष्टि भी ज्यादा होती है। तो गर्मी भी ज्यादा और ये वृष्टि भी ज्यादा होती है। ये सब इफेक्ट जो है भगवान जो है भगवान के अंदर में होता है,
और ये जब कौन करते हैं? सूर्य नारायण करते हैं। भगवान सूर्यदेव को भी सूर्य नारायण कहा जाता है। और सबसे पहले भगवान के शिष्य जो हैं वो सूर्यदेव हैं। अब भगवान कहते हैं कि एवं विवस्वतो योगो प्रोक्तवान अहम अद्वयम, मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्यदेव को ये जो भगवद्गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन। और उसके बाद ये परंपरा में चली आ रही है, एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विदु सकालीन महता योगो नष्ट परंतप, और काल के साथ ये नष्ट हो चुकी है। तो भगवान जो है इस तरीके से सारे ज्ञान के स्रोत हैं। भगवान सूर्यदेव की एनर्जी के पीछे के स्रोत है, और सूर्यदेव जो है सारे जो एनर्जी है उसके स्रोत हैं। और उसको उनको जो है सूर्य को जैसे दिया दिखाया जाए, भगवान सूर्य को जैसे थोड़ा सा जल चढ़ाया जाए। भगवान को लोग बोलते हैं कि कष्ट अगर होता है, अगर कोई व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगानी है, तो उसको जल, वो तांबे के पात्र में जल में हल्का सा लाल कुमकुम और लाल फूल अड़हुल का डाल करके भगवान को, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से जो है सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसका सूर्य प्रबल होता है उसको सरकारी नौकरी मिलती है। तो लेकिन भगवान जब प्रबल हो जाए तो भगवान आपकी गवर्नमेंट ही बना देंगे। ये मत सोचिए कि ये गवर्नमेंट जो है मोदी जी के नाम से चल रही है। गवर्नमेंट जो है भगवान बनाते हैं। भगवान जिसका चाहते हैं उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। नहीं तो किसको पता था कि युधिष्ठिर महाराज जो है इतने जो है एक मछली के समान है, सामने जो है तिमिंगला खड़ी है। हाँ, तिमिंगला। तिमिंगला कौन सी मछली है? इंगला एक मछली होती है। इंगला 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 मछली होती है। वो होती है 8 कोस बड़ी, 8 माइल के अराउंड बड़ी होती है। और उसको जो खड़े खड़े निगल जाए उसको बोलते हैं तिमिंगला। तो तिमिंगला का साइज ये होता है। तो ऐसी अनेक मछलियां, और उनकी तुलना की गई है भीष्म पितामह से, बाकी लोगों से। तो ऐसे लोगों के सामने अर्जुन कुछ भी नहीं थे। परशुराम जी ने खड़े खड़े सहस्त्रबाहु अर्जुन को वध कर दिया था। सहस्त्रबाहु कौन था? रावण को उसने पपेट बना के रखा था, पपेट बना करके, और छोटा सा गुड्डा बना करके रखा था उसने, लेकिन उसको भी कर दिया। और ऐसे लोगों के सामने पांडव खड़े थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी तो राज्यपाठ मिल गया उनको। तो उसी तरीके से भगवान जिस पे कृपा कर देते हैं उसकी आवश्यकता तो क्या, वो उसको ब्रह्मांड उसको दे देते हैं। आप ध्रुव महाराज को देख लीजिए। ध्रुव महाराज ने 6 महीने की तपस्या की, उनको 36,000 साल का राज्य मिला। यहाँ पे लोग 5 साल के शासन के लिए कई मर्डर कर देते हैं, कई दंगे फसाद करवा देते हैं, कुछ कुछ करवा देते हैं, जनता को भारी तकलीफ देते हैं। लेकिन भगवान जो है इतने जो है दूरदर्शी हैं कि, और इतने कृपालु हैं कि 6 महीना जिसने उनसे प्रेम से उनकी भक्ति की है उसको 36,000 साल का राज्य देते हैं। वो भी निष्कंटक। वो व्यक्ति ना मरेगा भी नहीं, ना बूढ़ा होगा, ना कोई बीमार पड़ेगा, आनंद भोगेगा बस 36,000 साल। ना जरा, भगवान क्या बोलते हैं कि धराधाम में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन ना उसको जरा होगा, ना उसका मृत्यु होगा, ना उसको व्याधि आएगी। जन्म तो हो ही गया, खैर भगवान के भक्त का, इसलिए तो भक्ति कर पाया। ये 3 चीज नहीं होंगे। और लास्ट में अब ध्रुव महाराज जो है, आप लास्ट में देखिए ध्रुव महाराज जो है वो जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, और मरते नहीं है, मृत्यु के ऊपर पैर रख करके वो जो है जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कैसे सबकी सहायता करते हैं, भगवान कैसे कृपालु हैं, और आत्मा राम में उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जो भी हम उनको ऑफर करते हैं भगवान उसको अनगिनत रूप में हमको अर्पित करते हैं। ये भजन गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। तो वास्तविकता भी यही है, सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी जो है भगवान का दिया हुआ है, ये सांसें भी जो है भगवान की दी हुई है, बीवी बच्चे घर परिवार सब जो है भगवान का दिया हुआ है। तो हमको जो है सब भगवान की सेवा में लगाना है। और सूर्य का एग्जाम्पल जो है एक जगह और आता है कि कलो नष्ट दिशा में ईश पुराण अर्को अधुनोदिता। अर्क मतलब होता है सूर्य। और ये श्रीमद् भागवतम को जो है सूर्य से तुलना की है। क्यों? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सब। जब भगवान कृष्ण जो है अपने धराधाम पे चले गए, अपने धराधाम पर चले गए,
तब जो है वहाँ उस समय जो है पुराण का जो है आगमन हुआ। कौन से पुराण का? श्रीमद् भागवतम पुराण का। और श्रीमद् भागवतम पुराण से ही पाठ कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम पुराण में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में बताते हैं, निमग्ना नाम यथा गंगा, देवा नाम यथा च्युतो, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम यथा। सारे शास्त्रों में जो है श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। सारे नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ है, सारे देवताओं में जैसे अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, और सारे वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी तरीके से सारे पुराणों में जो है श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। और इस तरीके से जो है भगवान की यहाँ पे विद्वत्ता जो है प्रतिपादित होती है। और यहाँ पे जो है एक चीज और बताया गया भगवान को, कि सिटीजन्स जो थे, जो नगरवासी थे, द्वारिकावासी थे, वो कैसे भगवान को जो है आह्लादित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। उनकी जो है आगमन के लिए जो है अ, आंखें बिछाए रखे हैं, उनके लिए अगवानी कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अब जब उसके पापा घर पे आते हैं तो बच्चा कितना खुश होता है, पापा चॉकलेट लाए हैं, टॉफी लाए हैं, वो पापा का पॉकेट चेक करता है, टॉफी निकालता है, और वो टॉफी अपने भी खाता है, थोड़ा सा पापा को भी खिलाता है। तो अर्भक, यहाँ पे अर्भक कहा गया। अर्भक बच्चे जिनको कुछ वो नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वो कुछ नहीं जानता, वो जो मिल जाता है वो मुंह में डाल लेता है। उसी तरह के छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन भगवान तो जो है वांछा कल्पतरु है, और उनके भक्त भी वांछा कल्पतरु हैं। तो भगवान जब वांछा कल्पतरु हैं तो वो देते किसको है? प्रभुपाद जी बताते हैं, वो ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके ओबीडियंट सन होते हैं, जो उनकी बात मानने वाले सन होते हैं। जैसे भगवान के भक्त होते हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो उनकी बात नहीं मानने वाले होते हैं उनको कभी कभी वो नहीं भी प्रोवाइड करते हैं, या जिसको समस्याएं जो क्रिएट करते हैं उनको जो है प्रताड़ित भी करते हैं भगवान। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे भगवान के भक्ति में जो व्यक्ति लीन है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान को ऑफर कर रहा है, उसको भगवान सब कुछ संपूर्ण रूप से देते हैं। और अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, कई बार नहीं देते हुए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। दंड प्रणाम।